It's 8:30, but let us wait for 2 more minutes. Welcome, Jayant Joshi ji. Welcome, Shalini ji. Good to see you all. One minute to go. Me and speaker really appreciate if you keep your video on mode so we can see your faces, if it is possible for you. So it is 8:32 and let us start with the session. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, I, Leena Doshi, welcome you all on the 102nd program from the platform of Let's Grow Together. कहते हैं, to become a successful surgeon, you must have the eyes of a hawk, the heart of a lion, and the hands of a lady. पर अब उसमें भी बदलाव आया है, नया परिवर्तन आया है. मेडिकल साइंस दिन ब दिन प्रगति करता रहता है, जिसमें रोबोटिक सर्जरी एक न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है. रोबोटिक सर्जरी का प्रायोगिक उपयोग 90 के दशक में शुरू हो गया था. It was developed in NASA and US military has developed it. In the year 2000 में वो जनरल पब्लिक के लिए लाया गया और अनुमोदित किया गया. रोबोटिक सर्जरी के बारे में आम तौर पर लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं रहती हैं. उनको डर होता है कि ये बहुत महंगी प्रोसीजर है, पता नहीं एक मशीन यानी कि रोबोट कैसे सर्जरी कर सकता है, इसमें परेशानी बहुत ज्यादा होंगी. ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से ये सर्जरी कराने से बचते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनकी सेहत काफी खराब हो जाती है. यदि उन्हें रोबोटिक सर्जरी के बारे में सही जानकारी हो तो वे कई सारी समस्याओं से बच सकते हैं. हालांकि डॉक्टर्स का मानना है, और डॉक्टर अलेक्जेंडर मोटरी, एमडी सर्जन फ्रॉम यूएसए, वे कहते हैं कि आई एम इंटीमेटली अवेयर ऑफ द barriers that have kept the benefits of surgical robotics from physician, hospitals, and patients. But now I believe we are entering a new era filled with greater access and flexibility. We have only just begun to explore the potential of robotic surgery. तो बिल गेट्स का मानना है कि रोबोटिक्स एंड अदर कॉम्बिनेशंस विल मेक द वर्ल्ड प्रीटी फैंटास्टिक कंपेयर्ड विद टुडे. तो आइए आज इस सेशन के माध्यम से रोबोटिक सर्जरी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं. ये एक्चुअली क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसमें भी क्या एडवांसमेंट है, ये कई सारी सर्जरी में काम आती है, पर खासकर मॉडर्न पैंडेमिक डिजीज ओबेसिटी में ये कैसे काम करता है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे.
हमारे बीच जाने माने रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मनीष खैतान जी मौजूद है। मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी और साथ ही साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे ये डॉक्टर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करने में काफी मदद की। Dr. Manish Khaitan is Chief Surgeon and Director at Nobesity Bariatric Center located at KD Hospital, Ahmedabad. He did his graduation with gold medal from BJ Medical College, Ahmedabad, and after that, he took fellowship training in the field of gastrosurgery and laparoscopy surgery from USA. If I talk about his professional experience, he worked at many different places as a head of department or as a director or as a visiting faculty, like Civil Hospital with Dr. Kukreti at Gujarat Research and Medical Institute, at Medilink Hospital, Mittal Hospital, Ajmer, Asian Bariatric Hospital, Columbia Asia Hospital, and now as a chief surgeon and director at Nobesity Healthcare LLP since 2016. Published national and international papers in index journals and involved in active research and guiding researchers for research in the field of pediatric and GI. He obtained a very good teaching experience from Civil Hospital and Gujarat University, where he shared his surgical knowledge to students, and all of them has outshined with gold medals in the university exam. Have been performing advanced gastrosurgery since last 20 years, which includes laparoscopic and advanced open surgeries. He has conducted workshops at national level. He also invited as a faculty at various state level societies and internationally also, like American Society of Metabolic and Bariatric Surgery and Duke Bariatric Master Class. Recently, he has visited London as a faculty. I have a huge content to say about him, but it's better to listen him. So, dear friends and family, with great pride and joy, I am inviting such a towering personality and renowned robotic and bariatric surgeon, Dr. Manish Khaitan ji. मनीष जी, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू सर. Sir, you there? Manishi, I can't hear you. Manishi, can you please unmute yourself? Thank you, Yes, Leena. sir. Thank you, Leena ji, for your kind words. And it has been a great thing. It's a Saturday evening, I tell you very frankly, and it is something कि हम लोग बहुत busy होते हैं पूरे week, and we look forward कि Saturday evening को घर जाके relax करें. But लीना जी का ये invitation आया, तो of course मुझे लगा कि मुझे बोलना ही चाहिए, कोई इसमें प्रश्न ही नहीं था. So आज हम रोबोटिक्स की बात करेंगे, हम रोबोटिक्स सर्जरी की बात करेंगे, उसके पहले हम रोबोटिक्स की बात करेंगे. आपके हर के जिंदगी में रोबोट है. अगर आप सोचे तो हर की जिंदगी में रोबोट है. ये गाड़ी एक रोबोट है. आपने सोचा कभी कि आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे? अगर ये बात आपने उससे 500 साल पहले की होती या 1000 साल पहले की होती तो किसी ने भरोसा नहीं किया. तो क्या पागल हो जैसी बात है? घोड़ा है और भी सवारी का माध्यम है, उससे जा सकते हैं. तो ऐसे हो सकता है. गाड़ी है, हवाई जहाज है, ये सब रोबोट ही तो है, बस इसको कंट्रोल आप करते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में कोई भी रोबोट को, आज तक ऐसा कोई रोबोट नहीं बना जिसको ह्यूमन कंट्रोल नहीं करे. अगर आपने अपना कंट्रोल रोबोट पे छोड़ दिया और उसके चिप में कोई गड़बड़ आ गई तो भगवान जाने क्या हो जाए. इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या हम रोबोट की अगर जब भी बात करेंगे तो एक बात पक्की होगी कि उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं ह्यूमन के पास होगा. जहां पे कम से कम स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सुविधा हो, बाकी सारा काम वो कर ले, बस स्विच ऑन और स्विच ऑफ की सुविधा होगी. आपने स्विच ऑन किया, रोबोट ने काम करना शुरू किया. आपने स्विच ऑफ किया, आपको लगा कि ये रोबोट काम ढंग से नहीं कर रहा या इसका काम पूरा हो गया, तो इन दैट केस आप उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं.
तो रोबोटिक सर्जरी में अगर आप मुझसे पूछें कि मेरा इंटरेस्ट कैसे, तो एक्चुअली जब भी आप सर्जरी करते हो तो आप एक्सेलेंस बढ़िया कैसे करते जाएं और कैसे आगे बढ़े, पेशेंट की सेफ्टी कितनी ज्यादा हो और पेशेंट को अच्छा क्या दे सकते हैं। ये 24 घंटे, मतलब आप ये सोचिए कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि घर पर जाके खाना खा के सोते होंगे, पर मुझे तो बहुत बार नींद नहीं आती ये सोचते हुए कि क्या हम बेस्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट्स को और क्या हम आगे करें। तो इसी दरमियान में जब मैंने लैप्रोस्कोपी चालू की 1996 में, तब मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में लैप्रोस्कोपी नहीं होती थी। और 2007 में जब मैंने बैरिएट्रिक सर्जरी चालू की, तो मैं खुद भी 2002 में किसी ने मुझे बोला था कि आपको बैरिएट्रिक सर्जरी में आना चाहिए, आप बहुत अच्छी लैप्रोस्कोपी करते हो। उसको लगा हुआ कि मैं अच्छी करता हूँ, पर मैं तो बस करता था। तो मैंने बोला कि यार मैं कन्विंस नहीं। तो बात आई की गई होगी, फिर 2007 में कन्विंस हुआ, शुरू किया, शुरुआत की। वहां तक बात ठीक है, फिर लैप्रोस्कोपी में एडवांस होते गए, फिर एक दिन ऐसी बात आई, अब और आगे क्या। तो हमारे पास आप विश्वास नहीं करेंगे 250 किलो, 300 किलो, 350 किलो तक के पेशेंट आते हैं, 320 जो मेरा हाईएस्ट है। तो अगर इस तरह के पेशेंट आते हैं तो लैप्रोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसकी साइज होती है 42 सेंटीमीटर। वो 42 सेंटीमीटर भी छोटी पड़ जाती है। और लैप्रोस्कोपी आप करते हो, आपको जनरल लैप्रोस्कोपी के बारे में बहुत लोगों को कुछ आइडिया होगा कि दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी है। जब ये सर्जरी करते हैं तो पेट में कार्बन डाइऑक्साइड हवा भरते हैं, जिससे पेट में जगह हमें मिलती है और हम अपने सर्जिकल स्किल्स के साथ उसको पूरा करते हैं। पर इतने ज्यादा हेवी लोगों में, या जहां आपको ऐसी जगह काम करना हो जहां पे हवा भरी नहीं रही है, उसका पेट इतना भारी है, तो करें क्या। परेशानी बहुत होती थी, तो एक चैलेंज लगता था। इसी के बीच में मेरा इंट्रोडक्शन रोबोटिक के साथ मेरे ही एक मित्र ने कराया और मुझे लगा कि दिस इज द फ्यूचर। तो मैंने बेसिक ट्रेनिंग तो इंडिया में ली, जो जानवरों के लैब में की जाती है। एक सेकंड, एक सेकंड, शानू मैं 9:30 निकलूंगा मेरी मीटिंग। हाँ बोलो। तो ये सारी बातें मुझे माफ करेंगे, मुझे 2 फोन बीच में उठाने पड़ेंगे क्योंकि ये फोन मेरे हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। मैं हॉस्पिटल में बैठ रहा हूँ। नो प्रॉब्लम सर। 7-8 पेशेंट आज ऑपरेट किए हैं, तो थोड़े बहुत फोन आते रहेंगे। तो इस तरह से रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई। फिर मैं वापस यूएसए गया, बॉस्टन में, और वहां पे एडवांस रोबोट्स थे, वहां बातें की और शुरुआत की। तो रोबोट के बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा तो क्या बताऊं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि शुरुआत में जब रोबोट हुआ तो सबने बोला कि ये बहुत बड़ा है, कहाँ घुसाएंगे, इतना एक्सपेंसिव है, इतना डेंजरस है, भगवान जाने क्या काट डालेगा अंदर रोबोट। प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे को ही लगा कि मुझे ट्रेन होना चाहिए, जबकि मैं 100% अपनी सारी सर्जरी लैप्रोस्कोपी करता था। सो सबका ये कहना था कि भाई हमको इसकी जरूरत नहीं। और ये सिनेरियो मैं 1992 में देख चुका था। जब मैंने 96 में चालू किया था लैप्रोस्कोपी, तो उस वक्त लैप्रोस्कोपी बहुत फेमस नहीं थी। जब गॉल ब्लैडर की बात करता था तो पेशेंट के क्वेश्चन मुझसे क्या होते थे, सर वो कैमरा पेट में तो नहीं छूट जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपने हाथ से तो फील किया नहीं है, काट समझा कुछ, काट दिया कुछ। तो इस तरह की बातें बड़ी उस वक्त भी होती थी। और आज ऐसी स्थिति है कि अगर आपका गॉल ब्लैडर कोई सर्जन ये बोलता है कि मैं काट के निकालूंगा, तो आप बोलोगे कि इस सर्जन के पास नहीं जाना, ये तो यार दूरबीन से होने वाली सर्जरी है, एकदम कॉमन है। तो हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि कोई नई चीज को एक्सेप्ट करने से पहले 50 तरीके के उल्टे प्रश्न डालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है और आपको बहुत तकलीफ है, बहुत पेन है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट चाहिए, और डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो तो डॉक्टर ने गलती से ये बोला, या गलती से क्या उसको समझ के बोला कि भाई इसकी तो दूरबीन के द्वारा सर्जरी करके इसको निकालना पड़ेगा। आप घर आते हो, आप डिसीजन में 2 दिन का टाइम चाहते हो, अड़ोस पड़ोस में किसी को पता चल गया तो आपके पास पहले दौड़ते हुए आएगा, अरे सर्जरी मत करा, फलाना मर गया।
अरे सर्जरी मत कराना, उसकी किडनी खराब हो गई थी। अरे सर्जरी मत कराना, डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं। आप ये पी लो, आप कुड़ते का पानी पी लो, आप बार्ली वाटर पी लो, आप बियर पी लो, उससे स्टोन निकल जाएगा। तो ये हमारा जो दिमाग है ना, वो एक निगेटिविटी को अप्रोच करने वाला पहला है। आपने कोविड में भी देखा होगा क्या हुआ। कोविड आया, हमको भी नहीं पता था कि कोविड का ट्रीटमेंट क्या होता है। मैं कोविड के नेशनल टास्क फोर्स में था, सर्जन था फिर भी था। उसका रीजन ये है कि मैं अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट था और उस वक्त कोविड अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस हर जगह आ चुका था। तो उन सब से, उनके प्रेसिडेंट से मेरी बात होती थी क्योंकि सर्जरी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उनसे डेली मीटिंग होती थी और काफी चीजें उनसे सीखने को मिली। और जब वो मैंने यहाँ के फिजिशियंस को बताना शुरू किया तो फिर एक नई तरीके से बात आई। और वहां पेशेंट को मैं देख रहा था कैसा डर, कि मतलब सैचुरेशन अगर आपका 2% गिर गया है तो मुझे हॉस्पिटल में बेड चाहिए, मुझे हर हालत में ट्रीटमेंट चाहिए। वहां तक भी सही है कि चलो नया रोग है, नया डर है, समझ में आता है। पर जब वैक्सीनेशन चालू हुआ तो सब उस डर से गुजर चुके थे, सब जान चुके थे कि कोविड में क्या हालत हो चुकी है। उसके बाद भी वैक्सीन, शुरुआत में तो थोड़ा सा फिर भी स्पीड ठीक रही, बाद में लोग वैक्सीन लेने को तैयार थे। मतलब एक तरफ तुम रोग से डर रहे हो और एक तरफ कोई, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। तो वही हालत रोबोट के साथ होगा। मैं यही बस समझाना चाहता हूँ। तो यही बात हुई थी 1911 में ऑटोमोबाइल के बारे में, अमेरिका में, कि बहुत बड़ा, बहुत एक्सपेंसिव। और 1925 में एरोप्लेन के बारे में। आज के डेट में तो नहीं लगता है कि कोई इस तरह की बेवकूफी वाली बातें भी करता हो। तो बेसिकली कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोट, रोबोट क्या होता है? रोबोट कुछ भी काम कर सकता है। आपने देखा होगा होटल में रोबोट खाना परोस रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हो, वो भी एक प्रकार का रोबोट है। आपके घर में सफाई काम करने के लिए छोटा सा रोबोट होता होगा। बहुत सारी चीजें, हर चीज जिसको आप नहीं करते हैं, जिससे आपकी अपनी मेहनत कम हो जाती है और प्रिसीजन के साथ काम होता हो, मुश्किलें नहीं आती हो काम करने में और जिंदगी आसान होती हो, वहां पे अगर इंसान का काम नहीं है तो जो भी ये काम कर रहा है वो, आपका सर्वेंट अगर आपका काम अच्छा करता है और आपका लोड कम कर देता है तो वो आपका रोबोट है, बशर्ते उसका बटन आपके हाथ में होना चाहिए। और बस प्रॉब्लम यह है कि किसी इंसान का बटन हमारे हाथ में नहीं, रोबोट का हमारे हाथ में। तो कोई भी प्रकार की सर्जरी करने के लिए डाविंची एक अमेरिकन कंपनी है, उसने पहला रोबोट, कॉमर्शियली अवेलेबल रोबोट की शुरुआत की थी। और जैसा मैडम ने पहले बता दिया कि नासा में इसका रिसर्च हुआ था, बाद में ये कॉमर्शियली अवेलेबल होता चला गया। सो रोबोट के फायदे क्या है? देखिए, जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो हम स्क्रीन पे एक चीज देख रहे हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन पे चीजें देख रहे हो, मैं आपको दिख रहा हूँ, मैम आपको दिख रही है, आप मुझे देख रहे हैं। लेकिन हम क्या इस चीज को 3D में देख पा रहे हैं? नहीं। रोबोट को जब भी आप सर्जरी करते हैं, किसी भी ऑर्गन की करें, आजकल रोबोटिक सर्जरी थायराइड के लिए भी होती है, लंग्स के लिए भी होती है, पेट में हर तरह के रोग के लिए होती है, प्रोस्टेट के लिए होती है और नी रिप्लेसमेंट भी होता है। उसको आप पूरा 3D में देख सकते हैं। जब आप पूरा 3D में देख सकेंगे तो आप क्या विश्वास करेंगे? जैसे मेरा हाथ है, ऐसे मैंने रखा हुआ, आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे हाथ की गहराई और लंबाई कितनी। पर अगर आप 3D में देखेंगे तो आपको पूरा ये दिखेगा कि ये हाथ की लंबाई इतनी, गहराई। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को वहां डालेंगे तो एग्जैक्टली वहां डाल सकेंगे जहां आप डालना चाहते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा टिश्यू के साथ आपको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक 3D विजन आपको रोबोट देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैं बहुत साइंटिफिक नहीं बताना चाहूंगा, पर सबका सारा कंट्रोल सर्जन के हाथ में। ये दो हाथ में और दोनों पाँव में, इस दो पाँव और दो हाथ को यूज करके आप सब रोबोट के सारे कंट्रोल्स को जैसा चाहो वैसा मैनेज कर सकते हो। और आजकल तो रोबोट इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं कि अगर मान लीजिए आपने उसको कोई एक सर्जरी, सपोज लीजिए कि आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी की और बहुत बढ़िया सर्जरी की, तो वो स्टोर हो जाएगा उसके दिमाग में। उसके बाद मैं बैठ गया कंसोल पे और मैंने कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की, तो उसके मेमोरी में वो आ जाएगा कि जो पहली सर्जरी की थी
उसका तरीका अलग था, आपका तरीका अलग है। अगर आपका तरीका अलग है तो वो आपको वार्न करेगा कि ये तरीका शायद सही नहीं है और इसमें हो सकता है पेशेंट को प्रॉब्लम हो जाए। तो अगर आप कुछ अलग कर रहे हो तो वो अलर्ट सिस्टम भी आपके पास वो आ जाएगा। आजकल वो भी एक आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वंडर कर सकता है, इस बात की व्याख्या तो जब आप उसमें घुसेंगे तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज उसको करना बड़ा मुश्किल है। तो रोबोट का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जैसे उंगली, जब हम ओपन सर्जरी करते थे तो ये उंगली को मोड़ सकते थे, कहीं भी घुसा सकते थे, कैसे भी टांके ले सकते थे। जब लैप्रोस्कोपी का ईरा आया तो उसमें उंगली नहीं होती, वो सीधा एकदम ऐसा, उसमें जो काम करना है आपको ऐसे सही करना। जब रोबोट आया तो रोबोट के सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरह से आए कि यहाँ तक तो सीधे, कलाई तक आप समझ लीजिए सीधे। उसके बाद वो भी सारे उंगलियों की तरह इस तरह से बेंड हो सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे मेरे देख रहे हैं उस तरह से वो बेंड हो सकते हैं। अगर कोई चीज बेंड हो सकती है और आप ये सोचिए कि मुझे कैविटी में जाना हो, कहीं ऐसी अंदर जगह जाना हो जहाँ पे सीधा इंस्ट्रूमेंट पहुंचता ही नहीं, और मुझे उंगली करनी पड़े, तो मेरे को पेशेंट को ओपन सर्जरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। रोबोटिक सर्जरी है आपको मदद करने के लिए, और रोबोटिक सर्जरी से उस सर्जरी को भली भांति पूर्ण किया जा सकता है। सो बेसिकली रोबोट्स आर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस बट आर मोर प्रिसाइज एंड दे आर फ्लेक्सिबल। जो सिंपल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की प्रॉब्लम है वो इंस्ट्रूमेंट नॉन फ्लेक्सिबल है, बहुत ज्यादा टॉर्क, मतलब हम लोग जब इतने बड़े बड़े एब्डोमेन में जब डालते हैं इंस्ट्रूमेंट तो उसके लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। जब वो रास्ता बना के आप इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, इंस्ट्रूमेंट एकदम सीधे होते हैं, जब आप उसको ऐसे फ्लेक्स करेंगे तो इतना हाथ पे प्रेशर आता है कि लगता है इंस्ट्रूमेंट टूट जाएगा। फिर इंसान है, इंसान के ठंडी लगी, डॉक्टर को ही अगर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई तो हल्के से ट्रेमर्स आ सकते हैं जो रोबोट में कभी नहीं आए, और एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो रोबोट को इस तरह से डॉक किया जाता है, यही रोबोट है, यहाँ पे कोई सर्जन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जैसा आपने देखा है इस रोबोट के 4 आर्म होते हैं, उसी तरह से पेट पे 4 छेद किए जाते हैं जिसके थ्रू ये इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि फिल्टरिंग आउट एनी ट्रेमर्स इन द हैंड ऑफ सर्जन, एक सिंगल मोशन में सारा का सारा मूवमेंट कर सकते हैं, और एर्गोनॉमिकली कंफर्टेबल। मतलब इसको मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जब मुझे बनाना होता है तो प्रेजेंटेशन में साइंटिफिक वर्ड यूज करने होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, अगर आप गुजरात से हैं तो पतंग उड़ाने की बात तो आप समझते हैं। अगर 14 जनवरी को हवा नहीं थी तो आपको बड़ी तकलीफ होती, यार आज हवा नहीं, मजा नहीं आया, पूरा मकर संक्रांति या उत्तरायण का पूरा मजा ही चला गया। और अगर 15 को हवा होती है तो आप मान के चलिए कि आधा गुजरात छुट्टी पे होता है, वो 15 को पतंग उड़ाता है। तो ये अर्गोनॉमिक्स है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि अनुकूलता के हिसाब से फंक्शन को परफॉर्म कर। हवा है तो पतंग उड़ेगी, तो जैसा अनुकूलता अंदर होगी उस हिसाब से रोबोट आपका फंक्शन परफॉर्म करेगा। जो उसकी लिमिटेशन है कि हाथ से टच करके जो आप कोई चीज को फील कर सकते हो, मैं फील कर सकता हूँ कि ये टिश्यू मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, हाथ से फील करूंगा तो पता चल जाएगा ये फैट है, इसके अंदर ब्लड वेसल है कि क्या है। इंस्ट्रूमेंट सच में थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए एक जगह चाहिए। 11 करोड़ की अभी की कॉस्ट है डा विंची। कुछ रोबोट और आए हैं जो 3-4 करोड़ में है, पर वो रोबोट हाईली इनएफिशिएंट है। फिर आपको एक हाईली ट्रेंड पर्सन चाहिए एक साइड असिस्टेंट के लिए, जो रोबोट को डॉक कर सके, अनडॉक कर सके। और हर किसी चीज को सीखने का एक लर्निंग कर्व होता ही है। मैं जब डॉक्टर बना तो डॉक्टरी सीखने का लर्निंग कर्व था, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन बना तो उसका लर्निंग कर्व था, फिर उसमें से लैप्रोस्कोपी में आया तो उसका लर्निंग कर्व था, जो उसमें आपको 1-2 साल लगते हैं अपनी एक्सपर्टाइज को बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्टाइज बनाना। सो which kind of surgery you can do with robots? ये लीना बेन का क्वेश्चन था कि भाई कार्डियक के बारे में आप बात करिए, नी के बारे में आप बात करिए, वो मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोबोटिक्स जो है वो ओवरकम, आपके ह्यूमन हैंड्स की जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करे। और आपके दिमाग जो है वो एक विचित्र चीज है, वो पता नहीं क्या सोचता है और क्या करता है। कभी कभी प्रिसाइज डिसीजन लेने में तकलीफ होती है, या आप हड्डी काट रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा मैं इस एंगल पे काट दूं,
हो सकता है गलती हो जाए, पर रोबोट गलती इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसमें वो मेमोरी स्टोर हो चुकी है कि 30 डिग्री पे ही काटना है। तो वो जो स्टोर हो जाती है वहां पे, जैसे ही आप 30 डिग्री की जगह 35 डिग्री पे काटने की कोशिश करोगे रोबोट से, कंट्रोल तो आपके हाथ में, उसी वक्त वो एक बार रुक जाएगा, पूरा रोबोट काम करना ही रुक जाएगा, और आपको ये बोलेगा कि बॉस कहीं गलती तो नहीं हो रही। फिर भी आप अपनी गलती नहीं मानोगे और वैसा करोगे, तो फिर उस डॉक्टर के बारे में तो मैं क्या बात। सो दिस इज द न्यू इंटरफेस बिटवीन सर्जन एंड पेशेंट, ह्यूमन एबिलिटी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, हमारे जो लिमिटेशन लैप्रोस्कोपी में है उसको दूर करना, और बिना काटा पीटा, मिनिमल इन्वेजिव का मतलब काटा पीटा करके पेशेंट की ऐसी हालत नहीं कर दो। जब हम पढ़ते थे तब पेशेंट के पेट पे एक बड़ा संस्कार होता था, चाहे कोई भी सर्जरी हो, और पेशेंट 7 दिन से पहले हॉस्पिटल में नहीं जाता था। खर्चे की तो बात सोचिए, आज की तारीख में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं किसी एक गॉल ब्लैडर के पेशेंट को 7 दिन हॉस्पिटल में रखूं तो एक दिन कैसे कैसे नुकसान है। तो 7 दिन वो कमाएगा, 7 दिन हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ेगा, 7 दिन उसकी दवाइयों का खर्चा बढ़ेगा, मेडिक्लेम है तो मेडिक्लेम के ऊपर भी इतना लोड आएगा। तो हर तरीके से नुकसान है, जिस नुकसान को दूर किया लैप्रोस्कोपी, और लैप्रोस्कोपी का ही एक एडवांस वर्जन रोबोटिक। सो दिस इज द न्यू इंटरफेस। सो दिस इज अ प्रेसिजन। आई वांट टू टेल यू, मैंने वीडियोस इंक्लूड करने की कोशिश नहीं की है, और ये सारे के सारे वीडियोस जहां पे मैं ट्रेनिंग करने गया था इलिनियस में, वहां से ही मैंने बनाए थे। तो ये एक काला रंग का अंगूर है, उसको कैसे काटना है इस तरह से हमको सिखाया गया, और इतने प्रिसीजन से कि आप उसका छिलका उतार सकते हो। आप जो दूसरी स्लाइड में देख रहे हो बाजू में पड़ा है, वो अंगूर काटा नहीं है, उसका हमने छिलका उतार दिया है रोबोट्स के साथ। अंगूर के ऊपर का छिलका उतार दिया, आप समझे इतना प्रिसीजन होता है कि आप चाहो तो ये काम भी कर सकते हो, जो अगर आप हाथ लेके चाकू से करने जाओगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप अंगूर को भी थोड़ा बहुत काट सको, काट दो। दिस इज ऑल अबाउट प्रिसीजन। सो करंट क्लिनिकल यूज क्या है उसका? ये आइसबर्ग, जैसे आपने देखा भाई, एक बार आपने बहुत बार सुना होगा कि पानी का जहाज था जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, कि वो एक आइसबर्ग से टकरा गया और टाइटैनिक पूरा डूब गया। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब आइसबर्ग एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े फ्लोटिंग बर्फ के पहाड़ होते हैं जो समुद्र में तैरते हैं, जो दिखते हैं उससे ज्यादा वो अंदर होते हैं, ये अंदर है। तो करंट क्लिनिकल यूज उतना ही है जितना वो दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते। मतलब आपको मैं बहुत सिंपल समझाता हूँ, ये सबको आप भूल जाइए, इतना कुछ जो मैंने लिखा है ये सब बेकार की बात को हम नहीं देखेंगे। आप चाहिए तो मैं, आप अमेरिका में हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझे तकलीफ हुई, गॉल ब्लैडर की तकलीफ हुई, मुझे सर्जरी करानी, एंड यू वांट टू चूज द बेस्ट सर्जन, तो भाई आप अपने शहर का बेस्ट सर्जन चूज करेंगे। पर अब ऐसी स्थिति आ सकती है जब यू वांट टू चूज अ बेस्ट सर्जन सिटिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो वहां बैठ के रोबोट के साथ आपकी सारी सर्जरी कर सकते हैं। मानते हैं आप इस बात? इस तरह की बातें कल्पना लगती, रोबोट भी एक कल्पना लगती थी, शायद से हमारे दादाओं परदादाओं को गाड़ी भी एक कल्पना लगती हो, पर ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है कि ऐसा हो सकता है। गूगल ने बीच में गूगल गॉगल्स निकाला था, उसमें कुछ कमियां हो गई जिसके कारण उसको विड्रॉ करना पड़ा। मैंने वो गॉगल्स को यूज किया है, मैं अपने गॉगल्स को पहनता था और मुझे उसके अंदर पूरा सर्जिकल व्यू दिखता था, मैं सामने नहीं देख सकता, आपको नहीं देख सकता, उसके लिए मुझे बटन दबाना पड़ेगा, तो मैं पूरा सर्जिकल व्यू दे सकता था। तो मैं, वो मेरे लिए टीवी स्क्रीन का काम करता था, मैं सर्जरी करता था, वो टीवी स्क्रीन की तरह मेरी आंखों पे आता था। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती? बिल्कुल हो सकती और होंगी। आगे आने वाले 5 से 7 वर्षों में 7 समुंदर पार बैठा पेशेंट 7 समुंदर पार बैठे सर्जन से अपनी सर्जरी करवा सकेगा। अगर आपको लगता है कि मेरा वो सर्जन बेस्ट है या मेरे घर का वो डॉक्टर है या लीना जी से मुझे सर्जरी करवानी है, तो लीना जी घर बैठे सर्जरी कर सकती है। तो ये जमाना भी आने वाला है। सो क्या नया है? जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ नई चीजें आई हैं कि टिश्यू के साथ इंटरेक्शन, मतलब इसको क्या बोलते हैं टिश्यू के साथ इंटरेक्शन? आप भाई एक रोबोट के लिए तो हर चीज एक मांस है, आप समझिए मसल, उसके लिए तो हर चीज जिसको काटने बोलोगे काट देगा, उसको क्या पड़ेगा।
पर अब कैसे रोबोट आ गए हैं, जब वो लीवर को काटते हैं तो वो लीवर के अंदर छुपे हुए ब्लड वेसल को नहीं काटते, वहां रुक जाते हैं कि उनको पता है इसको काटेंगे तो ब्लीडिंग होगा, तो वो सिर्फ टिश्यू को काटते हैं। क्यूसा नाइफ बोलते हैं उसको। तो क्यूसा नाइफ सिर्फ और सिर्फ लीवर टिश्यू को काटेगा, वो ब्लड वेसल्स को नहीं काटेगा। ब्लड वेसल्स आपको दिखेंगे तो आप उसके अंदर आराम से क्लिप लगाइए और उसको काटिए। तो ये उसके माइंड में ट्रेनिंग दी गई है कि कहीं पर भी खून का बहाव देखो तो भाई उसको मत काटो, अगर उसको काटोगे तो खून बहेगा, इसलिए वो वहां रुक जाता है। आप सोच सकते हैं ऐसा कुछ कभी हो सकता है। उसी तरह से आप छोटे से छोटे छेद से सर्जरी कर सकते हो। आप सुबह सर्जरी करा सकते हो, और नॉर्मल पेशेंट में आप मानिएगा लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक सर्जरी में 200 किलो का पेशेंट अगर आज मैंने ऑपरेट किया है तो मैं कल शाम को उसको छुट्टी दे देता हूँ, वो घर जाके नॉर्मल काम कर सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेज हो गए हैं, जिसमें शॉर्ट हॉस्पिटल स्टे आ गया, पेशेंट अपने काम पे लौट सकता है, दर्द नहीं होता, और हर तरीके की फैसिलिटी होती है। फिर आजकल ऐसे रोबोट आ गए हैं जो इस तरह का विजन देते हैं कि अंदर अगर आप देखें तो आपको खून की नलियां भी अलग अलग दिखाई देगी। तो जब मैं टिश्यू को काट रहा हूं तो मुझे ये नलियां दिख रही है, ऐसे तो वो काटता ही नहीं है नलियों को, फिर भी वो दिख रही है। तो कहीं से कोई गलती नहीं हो जाए, कोई टाका ना ले लूं मैं वहां। अगर मुझे मान लीजिए हाथ में टाका लेना है, मैं हाथ में टाका ले रहा हूँ तो हाथ में तो मैं टाका ले लूंगा, लेकिन वो रोबोट मुझे बताएगा कि इसके नीचे एक मेजर बड़ी सी खून की नली है, तो आप जरा ध्यान रखें डॉक्टर साहब। तो वो डॉक्टर साहब को फिर ध्यान रखना है कि भाई वो कहीं से गलती से उसमें घुस ना जाए, उसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। सिंगल इंसिजन सर्जरी मतलब एक नाभि के ऊपर छेद किया, उसके अंदर घुसे। चूंकि ये रोबोट के सारे हाथ घूम सकते हैं तो आप कहीं भी पहुंच जाओ और कैसी भी सर्जरी कर दो। तो इस तरह की सर्जरी भी बहुत पॉपुलर बीच में हुई थी, पर अब इतनी पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि उस इंसिजन से हर्निया होता है और हर्निया के इंसिडेंस बढ़े हैं, इसलिए सिंगल इंसिजन सर्जरी को अब थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करना शुरू कर दिए। सो सिंगल साइड टेक्नोलॉजी की अभी हम बात नहीं करेंगे। व्हाट आर द न्यू डिवाइसेस? तो ये डा विंची, ये डा विंची और कुछ नहीं है, जादू है। इस रोबोट को अगर आप देखेंगे सर्जरी करते हुए, ऑफ कोर्स इसको देखने का तो कोई ऐसा मतलब नहीं, तो आपको लगेगा कि क्या ये पॉसिबल है, इस तरह से काम किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। सो 4 हाथ होते हैं इसके, पूरा का पूरा क्वाड्रेंट जो ये पूरी यूनिट देख रहे हैं आप, ये व्हील के ऊपर है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, एक ऑपरेशन थिएटर से दूसरे ऑपरेशन थिएटर में, दूसरे से तीसरे ऑपरेशन थिएटर में। और ये इतना भारी अब नहीं रहा जैसे पहले होते थे, तो जिंदगी बहुत बड़ी आसान हो गई। वरना मान लीजिए 5 सर्जरी है और रोबोटिक 5 को करना है, तो पहले एक खत्म करेगा, फिर दूसरा डॉक्टर आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। अब ऐसा नहीं रहा, सर्जरी खत्म हुई, रोबोट निकालिए, दूसरे जगह शिफ्ट करिए, पेशेंट अपने एनेस्थीसिया से बाहर आता रहेगा, दूसरी जगह काम चालू। अब लेजर टारगेटिक सिस्टम, अब डॉकिंग करने के लिए पहले इंसान चाहिए। तो डॉकिंग का मतलब क्या होता है कि रोबोट को आप पेशेंट के पास ले जाइए, जैसे शिप डॉक होता है डॉकयार्ड पे, शिप को लगाने के लिए मास्टरी चाहिए डॉकयार्ड पे, अगर आपको मास्टरी नहीं है तो आप शिप को तोड़ दीजिए। उसी तरह से रोबोट को डॉक करने के लिए मास्टरी चाहिए। तो रोबोट को पेशेंट के पास ले जाना, और पेशेंट के पास ले जाने के बाद रोबोट के आर्म को पेशेंट के पेट में जहां हमने छेद किया वहां सेट करना, इसमें मास्टरी चाहिए। अब ये देखिएगा आप, ये नीचे लेफ्ट हैंड में नीचे की जो फोटो है, इस तरह के प्रकार आपको डाल दीजिए, ग्रीन कलर का लेजर आएगा और अपने आप रोबोट उसमें जाके डॉक हो जाएगा। आपको रोबोट के हाथ को मूव करने की जरूरत नहीं है अपने हाथों से, पहले करने की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं है। तो अपने आप जाके एमने जाते जमना जगह जाइना, इट विल डॉक इटसेल्फ। सो अगेन आपकी मेहनत कम, गलतियां कम, परेशानी कम, हर तरह की चीजें में आसानी। इस तरह के रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपने देखे, इस तरह से वो घूम जाते हैं पूरे, जो देखते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है लैप्रोस्कोपी, ये हर तरीके से घूम जाते हैं। और जितने इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल हो सकते हैं लैप्रोस्कोपी में, वो हर तरह के पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट अब रोबोटिक सर्जरी में भी मिलते हैं। इसीलिए रोबोटिक सर्जरी अब धीरे धीरे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। पहले जहां तक मुझे याद है कि आज से करीब 5 साल पहले हिंदुस्तान में मुश्किल से 10 रोबोट होंगे, आज कम से कम 150 रोबोट, बिकॉज यही आने वाला कल है। जो इसको समझेगा वही आगे बढ़ सकता है, और आने वाला कल पॉपुलर तभी होता है जब पेशेंट को उसके फायदे हो।
अगर पेशेंट को कोई चीज से फायदा नहीं होगा तो वो आने वाला कल नहीं हो सकता, वो टाइम के साथ निकल जाएगा। तो आने वाला कल ये इसीलिए है कि इसके आपको फायदे हैं। सो ये इस तरह के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप हाथ की तरह घुमा सकते हैं इस तरह को अंदर रोबोट के साथ, जो किसी और तरीके से हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी। इसी तरह से स्टेपलर्स हैं जिसके अंदर आप, ये स्टेपलर इस तरह से होते हैं जो टिश्यू को काटते भी हैं और सिलते भी हैं, दोनों काम एक साथ में करते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में आप उसको घुमा सकते हैं। इस तरह के हैं। मैंने वीडियोस दिखाने की कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि वीडियोस दिखाना एक नॉन मेडिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद इतना उचित ना हो, पर आप इस तरह के, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट सिंगल और डिस्पोजेबल होते हैं। रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी कॉस्टली लैप्रोस्कोपी सर्जरी के मुकाबले इसलिए होती है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं उसको सिर्फ आप एक बार कर सकते हैं, उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट फेंक दिए जाते हैं, दोबारा यूज करने लायक ही नहीं रहते। लेकिन अब पहले के मुकाबले में चूंकि एक्सपर्टाइज आ गई है, जब मैं पहले एक सर्जरी करता था तो एक सर्जरी में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाता, अब सिर्फ 50,000 लगता है, क्योंकि अब मेरी भी एक्सपर्टाइज आ गई है कि मुझे कम से कम इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा से ज्यादा कैसे काम कर सकें उसका अनुभव हो चुका है। इस तरह से होता है। ये देखिए मैं बैठा हूँ सिमुलेटर के ऊपर और वहां पे वो सब चीजें मेरे हाथ में है और सब चीजें उसमें मुझे दिख रही है, पेशेंट के पेट के अंदर की सारी चीजें दिख रही हैं और दिख रही हैं और मैं उस हिसाब से उस चीज को ऑपरेट कर। अगेन आप इस तरह की फोटो देखिए जो हमारे रोबोटिक रूम के अंदर है। किनारे डॉक्टर्स अपना बैठे रहते हैं कंसोल के अंदर, मुंह अंदर घुसा लेते हैं, घुसने के अंदर सब कुछ दिख रहा होता है आपको 3D विजन, जैसा मैंने आपको समझाया। और अपने हाथ और पांव से आप पूरे रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि गलती से अगर ज्यादा पांव दबा दिया या ज्यादा हाथ हिला दिया तो रोबोट में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मैंने बताया नहीं, रोबोट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है, वो एक तय मात्रा से ज्यादा अगर आप इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो हिलेगा ही। उसके लिए आपको लॉक सिस्टम को अनलॉक करना पड़ेगा, तब जाके उसको आप ज्यादा हिला पाएंगे अगर वैसी जरूरत हो तो। वैसी जरूरत कभी पड़ती नहीं, इसीलिए रोबोट के अंदर प्रिसीजन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। फ्यूचर में इसका क्या एप्लीकेशन है, और सिमुलेशन को हम एडवांस करेंगे और ऑगमेंटेशन को हम रियलिटी, ऑगमेंटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए आप एक रूम के बाहर खड़े, रूम के अंदर क्या आपको क्या पता, दरवाजा भी बंद है, खिड़कियां भी बंद है, ऐसा कुछ जादू हो जाए जिससे आपको रूम के अंदर की चीजें दिखने लग जाए, तो आप समझो कितनी अद्भुत बातें हैं। तो बस ये ऑगमेंटेशन उसी को बोलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए बरड़, स्प्लीन, हिंदी में बोलते हैं तिल्ली, उसकी सर्जरी मुझे करनी है और मुझे रोबोट के थ्रू तिल्ली के अंदर दिखने लग जाए, तो कितने तरीके के कैंसर हम ढूंढ सकते हैं कि चलो ये के अंदर दिख रहा है यार, ये छोटा सा ट्यूमर कहीं कुछ दिख रहा है, ये नॉर्मल, तो हम उसको बायोप्सी भी कर सकते हैं, उसको निकाल भी सकते हैं। तो ये ऑगमेंटेशन जो है ये है रियल टाइम वार्निंग, जैसे मैंने आपको समझाया कि मत काट भाई, रुक जा, ठीक है। और रोबोट की अपनी एक मेमोरी हो जाएगी। अगर किसी अच्छे सर्जन ने 10 सर्जरी उसमें एक जैसे की है तो उसकी अपनी एक मेमोरी हो जाएगी। कब कोई दूसरा सर्जन आगे करेगा तो रोबोट उसको सिखा सकता है कि बॉस आप इस तरह से करो, तो आप नए सर्जन को एक अच्छी ट्रेनिंग दे पाओगे। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आज के कुछ रोबोट्स में ये काम करना शुरू किया है लोगों ने, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में ही ये चीजें आने लग जाएंगी। फिर टेले प्रेजेंस, रोबोट के अंदर क्या है कि आप 3D के अंदर, मैं सर्जरी कर रहा हूँ और यही सर्जरी आपके किसी पेशेंट को लगता है कि उसके रिलेटिव को भी कराने की जरूरत है और वो वांट टू कंसल्ट, तो मैं एक स्क्रीन पे उसके साथ कंसल्ट कर सकता हूँ बिल्कुल अच्छे से, और साथ में उसको सर्जरी कैसे हो रही है उसकी एक झलक भी दिखवा सकता हूँ। मिनिचराइजेशन और छोटा किया जा सकता है रोबोट, और छोटा और छोटा। अब तो लोग कुछ ऐसी बातें भी करने लग गए हैं कि रोबोट को आप कुछ चीजों के लिए, हर चीजों के लिए तो नहीं, आप ब्लड में इंजेक्ट कर दीजिए। अभी मेरे पास एक डायबिटीज मेजर करने के लिए एक नया रोबोट छोटा सा आया है, आप मानेंगे नहीं है। उसका डेवलपमेंट हमारे ही एक जान पहचान के मित्र हैं, उनके बच्चे ने किया है। उसमें छोटा सा कैप्सूल है, उस कैप्सूल को आप इंजेक्ट कर दीजिए चमड़ी के नीचे और छोड़ दीजिए। फोन में आपके एक ऐप है, उस ऐप को खाली कैप्सूल के पास ले जाइए, आपको रियल टाइम शुगर मिलेगी। रियल टाइम उस वक्त कितनी शुगर है वो आपको पता चलेगी। आप सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है, और उस कैप्सूल की लाइफ 15 साल। तो आप सोच सकते हैं कहाँ पहुंच रही है दुनिया। रिमोट सर्जरी जैसे मैंने बताया, आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं बैठ के यहाँ आपको ऑपरेट कर रहा हूँ।
मुझसे आपने सुना होगा सिर्फ एंडोस्कोपी करते हैं, बाद में रोबोटिक सर्जरी भी कर सकते हैं। सो इस तरह के बहुत सारे नए 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 एडवांस चीजें आ रही हैं, बहुत नई चीजें आ रही हैं, इतनी नई चीजें आ रही हैं कि उसके साथ स्पेस रख पाना या समझ पाने के लिए हम लोगों को भी बहुत ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो मैंने जैसे बताया, नोट्स इज अगेन, जैसे किसी के मुंह से आप उसकी सर्जरी कर दीजिए, या किसी के वजाइना से, किसी महिला है उसके वजाइना से आप उसके यूट्रस को निकालना है, यूट्रस को तो छोड़िए, वजाइना से बहुत लोग निकाल सकते हैं, वजाइना से जाके आप उसके स्टमक यानी आमाशय के ऊपर सर्जरी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें आजकल पॉसिबल होने लग गई हैं रोबोट से। और जैसे मैंने आपको बताया, वर्चुअल रियलिटी एंड सिमुलेशन दोनों चीज हो सकती है। मान लीजिए मुझे गॉल ब्लैडर करना है, आजकल एक नया इमेजिंग सिस्टम आया है कि उस गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने से पहले मुझे लग रहा है कि इस पेशेंट की गॉल ब्लैडर में मजा नहीं आ रहा, तो उस पेशेंट की पूरी इमेजिंग सिस्टम को आप रोबोट में डाल दीजिए, उस इमेजिंग सिस्टम को करके वो आपको एक वर्चुअल सर्जरी कराएगा आपसे कि भाई देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें आ सकती हैं, जो तुमने हमको डाटा दिया है उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इसका गॉल ब्लैडर का ये पार्ट जो नॉर्मली यहाँ होता है यहाँ नहीं होगी, यहाँ पे। जब आप सर्जरी करने शुरू करें तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, ऐसा उसने बताया है, हो सकता है वो कहीं और हो। और अभी 100% ये एक्यूरेट नहीं है, तो 30 to 40% केसेस में ये चीजें सही निकलती हैं। आने वाले वक्त के साथ मुझे लगता है ये 100% भी एक्यूरेट हो जाती है। ये हमारा ओटी का फ्यूचर है, जहां पे आप चारों तरफ स्क्रीन देख रहे हैं, बीच में रोबोट है, पेशेंट के लिए टेबल लगी हुई है, और हर स्क्रीन पे देखते हुए हम पूरी दुनिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं, हर लोगों से बात कर सकते हैं, रोबोट को रियल टाइम फीडबैक दे सकते हैं, समझा सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से और वेरी ब्रीफली हमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में समझाया। शायद अभी मैंने कुछ पढ़ा था, टेली रोबोटिक सर्जरी जो अपने डॉक्टर तेजस पटेल जी ने किया था, गांधीनगर से किया था, और अहमदाबाद में कुछ हार्ट सर्जरी किया था। तो सर टेली रोबोटिक भी शायद आपने बताया, और कुछ नैनो रोबोटिक भी आ रहा है, मतलब हाँ, वो नैनो रोबोटिक, वही बात की मैंने मैडम, कि वो जो जैसे आपने कैप्सूल डाला अंदर और आपने रियल टाइम अपने आप का शुगर चेक कर लिया, तो नैनो रोबोट्स जो हैं, नैनो रोबोट्स मान लीजिए पहले तो क्या होता था, जैसे कैंसर, उसमें रेडियोथेरेपी देनी है आपको। अब कैंसर में रेडियोथेरेपी तो आप एक एरिया को देंगे, मान लीजिए प्रोस्टेट का कैंसर है तो प्रोस्टेट के एरिया को देंगे, पर नैनो रोबोट्स को अगर आप किसी के ब्लड में इंजेक्ट कर दीजिए तो वो धीरे धीरे चल के जाएगा और प्रोस्टेट के अंदर घुस के वहां पे वो रेडियोथेरेपी देगा। ठीक है, ये भविष्य की बातें हैं, पर बहुत संभव है, क्योंकि आजकल ये चीजें होने लग गई है। और टेली रोबोटिक तो खैर मैं खुद कर चुका हूँ, इसलिए इसमें कोई बहुत नई चीज नहीं है। सर ये एक्चुअली कौन कौन सी सर्जरी में पॉसिबल है रोबोटिक सर्जरी? देखिए आज के डेट में जो पॉपुलर है, पॉसिबल तो हर जगह, पर पॉपुलर जो है, पेट की हर सर्जरी, गायनेकोलॉजी की हर सर्जरी, यूरोलॉजी की हर सर्जरी, और नी के रिप्लेसमेंट, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। हार्ट की सर्जरी में अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए हैं, और लंग्स की सर्जरी में ये बहुत पॉपुलर हुए हैं, और न्यूरो सर्जरी में ये इतने पॉपुलर अभी नहीं हुए हैं। तो बाकी सब जो, हाँ, हार्ट में जो एंजियोप्लास्टी करनी है वो आप रोबोट के थ्रू कर सकते हैं, पर बाईपास सर्जरी की जब बात करेंगे या सर्जरी जो होती है जब उसकी बात करेंगे, तो वो रोबोटिकली अभी इतना पॉसिबल नहीं। सर इस सर्जरी रोबोट से की गई सर्जरी के सक्सेस रेशियो कितने हैं? मैडम 100%। देखिए रोबोट से सर्जरी करने का मतलब नहीं कि उसमें सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस तो होना ही है। अगर आपका सर्जन अच्छा है, डायग्नोसिस परफेक्ट है, सक्सेस में कोई दिक्कत नहीं। और ओबेसिटी में कैसे रिजल्ट है इसके? बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम। देखिए ओबेसिटी में हमारे पास क्या होता है कि कॉस्ट फैक्टर के कारण हर पेशेंट को हम ये ऑफर नहीं करते, पर जिनका वजन बहुत ज्यादा है, 200, 250, 250, 300, तो उस तरह के पेशेंट में क्या होता है कि हमारे इतने लंबे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, पेशेंट की फैट की थिकनेस इतनी होती है कि उसको हवा भर के उठा के रखना, हमारे हाथ दुख जाए। रोबोट के अंदर उसके हाथ दुखते नहीं, उसका एक आर्म क्या करेगा, अंदर जाके ऐसे खींचेगा ना, तो अपने आप पेट पूरा ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? और लिफ्ट हो जाएगा तो अंदर जगह बन जाती है, बाकी के तीन आराम से ऑपरेट कर लेते हैं।
तो इससे क्या होता है कि कोई ऑर्गन को इंजरी किए बिना आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं किसी ह्यूमन पे डिपेंडेंट हूँ, किसी को बोलूंगा भाई तुम उठा के रखो, अब उसका हाँ हाथ हिल गया तो गड़बड़ हुई सारी चीजें। यहाँ हिलने का तो सवाल ही नहीं, आपने रोबोट का आर्म ऐसे फिक्स रख दिया, वो 25 घंटे तक ऐसे रहता है। जी 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 25 घंटे तक मेरा हाथ भी ऐसे नहीं रह सकता, जी जी रोबोट कहाँ पे रह सकता। जी जी। वेरी वेरी रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आ रही है। साइंस और मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है, और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मैं क्विक क्वेश्चन लेना चाहूंगी ऑडियंस से। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। मुझे लगता है शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। आपने बहुत अच्छे से समझाया, और विथ इंस्ट्रूमेंट समझाया तो थोड़ा और क्लैरिटी भी मिली हमें। सर, विथ योर कंसेंट आई वुड लाइक टू रिलीज माय नेक्स्ट सेशन फ्लायर। एक मीनाक्षी मौर्चोरिया जी ने हैंड रेज किया है। अनम्यूट योरसेल्फ मीनाक्षी जी। ये मीनाक्षी जी ने जो है हाँ, नी या रिप्लेसमेंट के बारे में पूछा है। यस, अच्छा देखिए नी रिप्लेसमेंट मीनाक्षी जी इज वेरी पर्टिकुलर थिंग। नी रिप्लेसमेंट में सारा आर्ट यही होता है कि किस एंगल पे नी बैठना चाहिए। एक ऊपर का नी होता है नी जॉइंट, एक नीचे का। दोनों को अगर आपने ढंग से एंगल पे नी बैठाया, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो आपका प्लेसमेंट फेल होता है। अगर यही चीज आप रोबोटिक से कराती हैं और जो एंगल होना चाहिए उसमें 0.1 डिग्री का भी फर्क नहीं है, आप समझ रहे हैं। अगर इंसान है तो 0.1 0.2 डिग्री का तो फर्क आ सकता है, तो उसमें वो उतना भी फर्क नहीं आएगा। वो उतना ही परफेक्ट उसको एंगुलेट करेगा, काटेगा आपके बोन को और उसी तरह से फिक्स करेगा और उसकी सीमेंटिंग करेगा। सो इट हेल्प्स। मीनाक्षी जी लंदन से है। और सर, आप जैसे कह रहे थे कि ये थोड़ा महंगा है, तो कितना महंगा है ट्रेडिशनल सर्जरी से रोबोटिक 50,000 सर्जरी? से 70,000 रुपए तक। उतना महंगा पड़ता है? जी। जी। जय दोषी जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। जय दोषी जी, आप अनम्यूट हो सकते हैं अपने आप। मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट की। आपके पास रिक्वेस्ट? हाँ जी। मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी पब्लिक के पास अवेयरनेस नहीं है इस बात की, रोबोटिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बताइए। हाँ जी, आप फिर से म्यूट हो गए। आप म्यूट हो गए हो। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ इंडिया में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है पब्लिक के पास कि वो रोबोटिक सर्जरी का नाम सुनते ही करवा ले। उनको लगता है आ कि ये जाइए, बड़ा कॉस्टली देखिए, होगी। वक्त के साथ आई, कभी भी कोई नई चीज लॉन्च होती ना जैसा, तो वो चीज है ना उस वक्त उतनी सक्सेसफुल नहीं होती। लोगों को भरोसा रखने में थोड़ा वक्त लगता है। जी जी जैसे जी। मैंने आपको बताया ना कि हमारा दिमाग जो है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, निगेटिविटी का भंडार है। वो पहले निगेटिव चीज सोचता है। आपको अगर ऊपर मान लीजिए जाना है झूले पे, तो आपको डर लगेगा कि कहीं गिर ना जाऊं। आप ये नहीं सोचते हो कि उस राइड को मैं एंजॉय करूं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, कि ये चीजें स्टैब्लिश होने में अपने आप को वक्त लेती हैं, ये रातों रात नहीं। जब लैप्रोस्कोपी सर्जरी आई थी तो रातों रात नहीं हुआ था जय जी। मुझे पता है कि मुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। जब ओबेसिटी सर्जरी शुरू की थी मैंने, तो आप नहीं मान सकते हैं जय साहब कि पहले साल में मैंने सिर्फ 3 सर्जरी की। कैसे घर चलाया होगा। आज ऐसी हालत है कि मैं महीने की 65-70 सर्जरी करता हूँ। तो हर चीज को वक्त लगता है। जब रिजल्ट आता है लॉन्ग टर्म, वो रिजल्ट टिकता है, तब जाके धीरे धीरे लोगों में भरोसा बैठता है कि ये चीज ठीक है ना। भगवान को भी अपने आप को स्टैब्लिश करने में कितने लाखों साल लगे, तब जाके अब सबकी आस्था बैठी भगवान। तो इन चीजों में वक्त लगेगा, पर ये आएगा। ये चीज जाने के लिए नहीं आई है। ये चीज जाने के लिए नहीं आई है क्योंकि रिजल्ट प्रिसाइज है। आज कैंसर सर्जरी है, कैंसर सर्जरी में प्रिसाइजली काटना है, पूरा ट्यूमर निकालना है, कुछ भी अंदर नहीं छूटना चाहिए। अगर रोबोट आपको ये बता दे कि बॉस जो आपको दिख रहा है ट्यूमर उससे 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, आप उसको थोड़ा सा ज्यादा काटो, ढंग से निकालो, तो अपने आप कैंसर का क्योर रेट कितना बढ़ जाएगा, आप खुद सोचिए इसका। तो इस राइट तरह राइट। के जो फायदे हैं, बहुत फायदे आएंगे धीरे धीरे। बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है।
यहाँ पे कोचीन में एक बहुत अच्छा सेंटर खुला है, मेड इन इंडिया, जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, उसके तहत दा विंची वालों ने कोचीन में सेंटर खोला है। अभी मैं हाल में वहाँ पे भी होके आया था, तो वहाँ पे भी काफी रिसर्च कर रहे हैं इस चीज के बारे में कि हाउ वी कैन डू स्टिल ज्यादा इसको अच्छा बना सकते हैं, लोगों को और ज्यादा मदद कर सकते हैं। आंखों के कैटरेक्ट का ऑपरेशन करने में जैसा कितना वक्त लगता है, कुछ नहीं, फिर भी आप पेपर में रोज पढ़ रहे हैं तो यहाँ इन्फेक्शन हो गया, वहाँ इन्फेक्शन हो गया, वहाँ 20 आदमी अंधे हो गए, वहाँ 10 आदमी अंधे हो गए। अगर आप रोबोटिक से आंख का ऑपरेशन पॉसिबल होता है, उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो भी आ जाएगा, तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, 4-6 महीने में आ जाएगा। तो रोबोट में इन्फेक्शन का तो सवाल ही नहीं है, सारे इंस्ट्रूमेंट नए हैं, और आप बैठिए, एनेस्थीसिया भी वो देगा, आपकी आंख भी खुली वो रखेगा, और फट करके लेंस डाल के बाहर 3 मिनट के अंदर अंदर तो आप लेंस डलवा के बाहर आ जाइएगा सारा एमल्सिफिकेशन के साथ। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे हो रही हैं और बहुत एडवांसमेंट आएगा, आपकी और मेरी कल्पना से भी शायद ऊपर और बाहर की तरफ। राइट सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। थोड़ा मेरा ये भी मानना है कि ह्यूमन बीइंग के साथ इमोशंस जुड़ी हुई है। कभी ऐसा भी हो जाता है कि सर्जन का मूड खराब हो तो भी शायद सर्जरी पे फर्क पड़ता है, मूड अच्छा हो तो सर्जरी अच्छी होती है। हालांकि रोबोट के साथ ये नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है कि एक यूनिफॉर्म सर्जरी होती है। आपकी बात एकदम सही है मैम, पर रोबोट चलाने वाला भी तो वही डॉक्टर होगा। तो प्रॉब्लम वहां पे अटकती है। यू आर वेरी राइट, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। इनफैक्ट आज ही कोई मुझसे ये बात कर रहा था कि डॉक्टर कहता है क्या आपकी कोई सीमा रेखा है, आप इतना काम करते हो और आप हम सब से भी काम करवाते हो, तो आपने कोई सीमा बांध रखी है? तो मैंने बोला ये मैंने कभी किया ही नहीं है ऐसा। आज से 15 साल पहले मैं चाहता था कि मेरे पास काम आए, अब मैं नहीं चाहता हूँ काम आए, काम ढूंढते हुए मुझे आता है, तो इसको रोक नहीं सकते। अब इसके अंदर तो इमोशंस मेरे भी होंगे, कभी मेरा मूड नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा, मेरे को भी अपनी जिंदगी चाहिए होगी, आपको भी अपनी जिंदगी चाहिए होगी, पर आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, रात को 9:30 बजने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। आप उसकी शुरुआत करते हो, पर अगर वो चीज अच्छी होती है तो पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर लेती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहती, तो फिर उस जगह आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में करना पड़ता है, और उस नेगेटिविटी को निकाल के जो जिस काम के लिए आपकी सर्जना हुई है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, उसी को करिए, ज्यादा अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वंस अगेन सर, एंड आई विल जस्ट टेक योर 2 minutes. Very quickly I will release my next session flyer. दोस्तों इसी सेशन से जुड़ी अगले सेशन में बात होने वाली है, वो है योगा आहार, द फूड इंजीनियरिंग। आज तो हमने सब बात करी सर्जरी के बारे में, पर अगर सर्जरी तक की नौबत ही ना आए तो कैसा रहेगा। तो आइए नेक्स्ट सेशन में हम नेचुरल डाइट सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसमें जोर देंगे इस विषय पर कि आपका फूड ही आपकी मेडिसिन है। नेचर ने हमें जो फूड दिया है उसको सही तरीके से कंज्यूम करने से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मिस्टर राजेश पटेल जी, जो एक योगाहार एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथ है और डाइटिशियन भी है, उन्होंने योगाहार पर एक बुक भी लिखी है। योग और आहार, ये 2 शब्दों को मिलाकर योगाहार वो प्रमोटर भी हैं। उनकी ये फूड प्रथा विशाल समुदाय में प्रचलित है और बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाया है। तो इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हमारी बात होगी। तो मैं समझ रही हूँ यहाँ पे सभी हेल्थ अवेयर लोग जुड़े हुए हैं, जिनको अवेयरनेस है अपने हेल्थ के बारे में। तो नेक्स्ट सेशन में मैं समझ रही हूँ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जुड़िए, ताकि मनीष जी के साथ जाने की नौबत ना आए। मनीष जी माफ करिएगा पर मैं खुद चाहता हूँ, जी थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। Thank you very much. Thank you, Leena ji, for calling. Thank you, all the audience, for listening me patiently. Thank you so much, sir. And You are have so a busy. nice evening and a nice Sunday to everyone. Yeah, you are so busy, surgeon, but फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला. Thank you so much. Thank you. Thank you, audience. Thank you, everyone. See you all next Saturday. It will be our 103rd episode. Thank you, everyone. God bless. Thank you. Thank you so much.